हेलो दोस्तों, आपका सुपर मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आइए एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का। दोस्तों, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। तो दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को आप हमेशा याद रखिए, तो निश्चित रूप से आप अपने लाइफ में सफल होंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 मैथमेटिक्स में ये चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। उसी के विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम? पहला है डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, properties of quadrilaterals, and test for checking understanding. So let us start this video. So first of all, definition of quadrilateral. You can see here a quadrilateral is a four-sided closed figure. It has four angles, four vertices, and two diagonals. It is a two-dimensional figure. So this is the definition of quadrilateral, and this is the shape of quadrilaterals. Now moving definition of polygons. A simple closed curve made up of any line segment, only line segment, is called a polygon. I want to tell you once again, a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. That is, a triangle is closed by 3 line segments, and a quadrilateral closed by 4 line segments, and a pentagon is closed by 5 line segments, and a hexagon is closed by 6 line segments. So these all are polygons. Now a note to keep always in mind that a regular polygon is both equiangular and equilateral. For example, a square has sides of equal length and angles of equal measures. Equilateral triangle also has sides of equal length and angles of equal measures. But it is not true for इरेगुलर पॉलीगॉन्स। मतलब समझ गए होंगे कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो उसके सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। अगर हम आपसे पूछें कि एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए तो आपका आंसर होगा स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें कि एक रेगुलर ट्रायंगल का नाम बताइए तो आपका आंसर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल आल्सो हैज all sides are equal and all angles are equal. Now types of quadrilaterals. There are 6 types of quadrilateral: trapezium, kite, parallelogram, rhombus, rectangle, and square. So there are 6 types of quadrilateral in class 8. So we will learn about these type of quadrilaterals one by one. So let us start. First one is properties of quadrilaterals. Okay, so here is first one is trapezium. So what do you mean by trapezium and what is the properties of trapezium? A trapezium is a quadrilateral with one pair of parallel sides. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल साइड का हो, एक पेयर पैरेलल्स हो तो उसको हम ट्रापेजियम कहेंगे। दिस इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ट्रापेजियम. You can say here opposite sides are parallel, so this is a trapezium. And this is a kite. You can say, what is the definition of kite? A kite is
A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal in length. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा पैरेललोग्राम. So this is the geometrical shape of parallelogram. You can see here opposite sides are parallel and equal. This is the breadth. This is also parallel and equal. Now moving for next. Here is the properties. Opposite angles are equal. Adjacent angles are supplementary. Do you know what do you mean by the supplementary? Means the sum of angles are 180 degree. Two angles, sum of two angles are 180 degree. That angles is known as supplementary. So adjacent angle means sum of this angle and this angle will be 180. Otherwise sum of this one angle and this one angle is also 180 degree. You can see in just here in the shape of the parallelogram, sum of this angle number 1 and this angle number 2. This is also supplementary. Otherwise sum of this angle and both top angles is also supplementary, that is 180 degree. Diagonals bisect each other. इसके जो diagonals होते हैं वो bisect करते हैं. ये है आपका diagonal first and this is the second. You can say that this part is equal and this is equal and this is also equal. Opposite parts are equal. This is the intersection points and these are two diagonals. So now moving for next, rhombus. What do you mean by rhombus? A rhombus is a parallelogram with all sides of equal length. अगर किसी भी पैरेललोग्राम में सभी के सभी साइड्स इक्वल हों तो उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहेंगे. ये आपका एग्जांपल है. ये ज्योमेट्रिकल शेप है. इसमें हम देख सकते हैं ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल. सो दिस इज नोन ए रोम्बस. नाउ हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पर सभी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. इस एंगल के इक्वल में ये एंगल होगा. अगर ये एंगल आपका 110 है तो ये भी 110 होगा. ये अगर एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा. सो ऑल एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Second one, adjacent angle are supplementary. Here is also because this is a parallelogram, so this property is hold here also. Adjacent angle का मतलब हुआ this side plus this 180. Otherwise this angle plus this angle also 180. Otherwise you can see here this angle and this angle also 180. Otherwise top angles are 180. And third one is diagonals bisect each other परपेंडिकुलरली. इसके डायगोनल्स जो होते हैं इस तरह से फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल दे विल मेक ए राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो दिस इज ए राइट एंगल, दिस इज ए राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज राइट एंगल. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच यू यूज्ड इन द क्वेश्चन. नाउ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इसके जो साइड्स अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और सारे के सारे साइड्स इक्वल भी होते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. नाउ नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल. सो व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगल? यस, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स. मींस अगर किसी भी पैरेललोग्राम में सभी एंगल इक्वल हो जाए, इक्वल मींस 90 डिग्री हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री हो और अपोजिट साइड से इक्वल हो तो वो आपका रेक्टेंगल होगा. दिस इज ए शेप ऑफ रेक्टेंगल. यू कैन सी हियर अपोजिट दैट इज लेंथ आर इक्वल, ब्रेथ इज ऑल्सो इक्वल एंड each angles is 90 degree here. So this is a rectangle. Now the properties of rectangle.
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके सभी एंगल्स ही 90 डिग्री होते हैं, तो अपोजिट क्या, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मींस आप टॉप एंगल्स अगर आप प्लस करोगे तो 180 आएगा, लेफ्ट एंगल्स अगर आप प्लस करोगे तो ये एडजेसेंट होंगे, तो इनका भी सम 180 होगा। अगर आप लोअर एंगल्स सम करेंगे तो उसका भी सम 180 होगा, और अगर राइट एंगल्स, राइट साइड के एंगल्स को सम करेंगे तो वो भी 180 डिग्री होगा। Diagonal bisect each other, you can say here this is the first diagonal and this is the second diagonal and they are bisect each other, means इसके दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा, so the diagonals are equal and bisect each other always and the diagonals are equal in the length, so this is the property, each angles of 90 degree in this. So now moving for next, square. So square is a parallelogram with all angles and sides of equal measures, means अगर किसी भी पैरेललोग्राम में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएं और सभी एंगल्स 90 डिग्री हो जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर होगा। This is the example of square. You can say here all sides are equal, all angles are 90 degree, so this is a square. Now properties of square: opposite angles are equal, that is all angles are also equal. Second one, adjacent angles are supplementary, means यहाँ भी इन सभी एंगल्स का सम 360 होगा और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। डायगोनल बाइसेक्ट एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं यू कैन से डायगोनल्स आर इक्वल भी होते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट डायगोनल, दिस इज द सेकंड डायगोनल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हियर इज आल्सो, ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, सो ऑल एंगल्स आर 90 90 90 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट and this top part equal to this lower part, so we can say that there are two equal diagonals and they bisect each other at 90 degree. Each angles of square is 90 degree. So now moving for next, test for checking your understanding. आपने क्या सीखा? तो चलिए first question is to you. Read the following statement carefully, say true or false and why. इसका आंसर भी देना है। Yes dear, first question for you, all rectangles are square. This is correct or false, true or false? Yes, your answer is correct. This statement is false because all rectangles are not square, क्योंकि rectangles में opposite sides इक्वल होते हैं जबकि square में सभी sides इक्वल होते हैं, so this statement is false. Now next question for you, all rhombus are parallelogram. Yes, this is true or false? Yes, again your answer is correct. All rhombus are parallelogram. This statement is true. चूंकि रोम्बस में सभी साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं तो रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, दिस इज ट्रू और फॉल्स? यस, योर आंसर इज करेक्ट, दिस इज ट्रू, क्योंकि सभी स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो वो रेक्टेंगल हो गया, और सभी स्क्वायर्स में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो वो रोम्बस भी हो गया। इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, यस दिस इज ट्रू और फॉल्स? Yes, again your answer is correct because this statement is false, क्योंकि सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, इसमें लिखा है नॉट पैरेललोग्राम। क्यों?
क्योंकि ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन द स्क्वायर, सो दैट इज ए पैरेललोग्राम. So this statement is false. Now next question, all kites are rhombus. This statement is true or false? Yes, your answer is correct. क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. और क्यों है? क्योंकि काइट का जो एडजेसेंट पेयर है केवल वही इक्वल होता है. रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होते हैं. तो यहां पे क्या है? ऑल काइट्स आर रोम्बस, यस और नॉट. तो यहां पे ऑल लिखा हुआ है. अगर ऑल नहीं होता तो कुछ मामले में ये सही भी हो सकता था, क्योंकि रोम्बस में सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और यहां पर केवल काइट्स में अपोजिट मींस एडजेसेंट पेयर ही इक्वल होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now moving for next, all rhombus are kite. Yes, this answer is correct. True or false? Yes, it is true. क्योंकि rhombus में जो adjacent pair होते हैं वो इक्वल होते हैं और हमेशा इक्वल होते हैं. क्योंकि उसके तो all sides इक्वल होते हैं, तो all rhombus are kites. This statement is true. Now next one, all parallelograms are trapezium. Yes, of course, this is correct. Or true or false? Yes, your answer is 100% correct, because this statement is true. क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और यहाँ पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. सो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है और आपका आंसर सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. यस ऑफ कोर्स, दिस स्टेटमेंट वंस अगेन ट्रू. क्यों? क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं. तो यहाँ पे ट्रेपेजियम में क्या चाहिए? पैरेललिटी चाहिए केवल. तो अपोजिट साइड शुड बी पेयर इन द ट्रेपेजियम, ओनली वन पेयर. और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में तो दोनों पेयर ही आप पैरेलल होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? यस, वंस अगेन योर आंसर इज करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और सभी एंगल 90 डिग्री भी होते हैं, और यही चीज रेक्टेंगल को चाहिए. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. So dear, next statement, all rectangles are square. What? This statement is true or false? Yes, your answer is correct. This is false statement. क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड्स ही इक्वल होते हैं. तो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. Next question for you. Yes, of course, this is the last question. Some parallelograms are regular polygons. Some parallelograms are regular polygons. So here is some लिखा हुआ है. So this statement is true or false? Yes. Your answer is correct. This statement is true. सभी जो पैरेललोग्राम है वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा अगर उसके सभी साइड्स इक्वल हो जाएं. तो आपको मैंने अभी बताया था, रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम. स्क्वायर क्या होता है? पैरेललोग्राम. तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अगर सभी इक्वल हो जाएंगे तो रोम्बस में सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तो रोम्बस रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकता है. लेकिन स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगॉन होगा, क्योंकि आपको रेगुलर पॉलीगॉन के लिए क्या चाहिए? ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ऐसा कंडीशन किस में आएगा? पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में आएगा. और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. सो ओनली इन द केस ऑफ स्क्वायर पैरेललोग्राम द पॉलीगॉन्स आर रेगुलर. तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हृदय से धन्यवाद.